Good morning, students. Today we will cover our chapter number 4, that is Albert Einstein at school in detail. So let's see the chapter. Let's see the characters first. We have here 6 characters. First one is Albert Einstein, because this is the autobiographical account of the Albert Einstein. So he was also as a character in this chapter. Then we have history teacher, whose name is Mr. Brown. Then we have Albert's only friend, that is Yuri. Then the doctor, Dr. Ernst Weil. Mathematics teacher, Mr. Koch. And Albert cousin's sister, that is Elsa. Okay, so these are the main characters which we have in our chapter. So let's see our story now. This chapter begins with the young Albert being in his history class. Okay, the first scene is the scene of the history class, in which the teacher asks him about a certain date, to which Albert admits that it is pointless to memorize the dates. Okay, so the history teacher asks question from the Albert Einstein about the date of a war, that on which date that Persians fought with the Germans. Okay, so what Albert replied, he replied that it is pointless to memorize dates. Okay, and he was of the thinking that he can flip through the pages if he want to know the date. Okay, so he was of thinking that he can flip through the pages whenever he wants to know the date about something. Thus, he did not believe in mugging up the facts. Okay, mugging means to memorize. So this type of behavior actually doesn't like by his teacher, because according to his teacher, this type of attitude is very careless about his studies. And whenever a teacher asks him question, a history teacher asks him question about the dates and the facts, he never knows about the answer, and his answer is that it's pointless to memorize the dates also. Okay, so let's move on. Einstein actually argues with his history teacher, and Einstein does not like the way facts are taught. He wants his history teacher to teach reasons rather than the dates. ठीक है, तो जब ये आर्ग्यूमेंट हो रही थी, तो जो टीचर हैं, जब उन्होंने डेट के बारे में पूछा, then Albert Einstein replied that he doesn't want to mugging up the dates or to memorize the dates, and more than to memorize the dates, it's important that why the war was fought. ठीक है, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कहना था कि हमें ये पढ़ाया जाए कि ऐसे क्या कारण रहे कि वॉर हुई, और ऐसे क्या और ऑल्टरनेटिव्स हम ढूंढ सकते हैं जैसे वॉर ना हो, ताकि जो लोग हैं उनकी डेथ्स ना हो, जो लॉसेस होते हैं, नुकसान होते हैं, वो ना हो। डेट्स लर्न करने की बजाय बल्कि हमें इस चीज़ों के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस होना चाहिए। ओके, सो ऑन द होल अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन, the way the facts are taught in the classes, that is pointless. Okay, so Albert told the class that in his opinion, to know the idea are more important than to learn dates or facts. Okay, so dates or facts are more important according to the Einstein than the facts. Ideas are more important than the facts. Okay, so the teacher, next scene is the teacher shouted that Einstein was a disgrace to the school and suggested him to ask his father to take him away. Okay, so actually Albert Einstein was from Milan, and he came for his study in the Munich. Okay, Munich is the area where he continued his studies. But now his teacher are not feeling good with him, so they suggested him to ask his father to take him away. But this is also not possible, because his father sent him for his further studies there. So his father was not likely to take him away until he has taken his diploma, until he has cleared his diploma there. Okay, so consequently we learn that Albert does not like
school as it adopts the traditional methods of teaching. ओके ये बातें एक्चुअली वैसे भी पहले बहुत पहले की हो रही थी, अभी तो फिर भी हम हमारी टीचिंग्स में और स्कूलिंग्स में काफ़ी ज़्यादा मॉड्यूलेशंस हो चुकी हैं, मॉडिफिकेशंस हो चुकी हैं, तो वो ट्रेडिशनल मेथड्स नहीं हैं, ठीक है। लेकिन तब जो था वो सिस्टम थोड़ा ज़्यादा ट्रेडिशनल था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चों को जो एजुकेशन थी डैट इज़ नॉट चाइल्ड ओरिएंटेड, ठीक है। बट नाउ अ डेज वी हैव द एजुकेशन डैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द चाइल्ड ओरिएंटेशन। ओके सो टुडेज़ आज की बात नहीं हो रही है, बहुत पहले की बात हो रही है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट ही डजंट लाइक द स्कूल बिकॉज दे अडॉप्ट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग एंड ही डिसलाइक्स द कन्वेंशनल फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन ऑल्सो. And similarly, now the teachers also don't have much liking to him. They consider him a disgrace, and the history teacher especially did not like him. So when this incident happens in history class, the teacher get irritated and ask him to leave, जो कि हमने पहले भी पढ़ा, ठीक है। जो टीचर्स थे उनका भी जो बिहेवियर था वो वैसे ही बनता जा रहा था, रूड, क्योंकि उनको भी ये लगता था कि जो एल्बर्ट है वो भी डे बाय डे रूड होते जा रहे हैं, ठीक है जी। सो अब बात करते हैं हम उनके लिविंग कंडीशंस की, बिकॉज वो अपने पेरेंट्स के पास नहीं रह रहे थे, वो डिप्लोमा के लिए बाहर आए हुए थे, ठीक है। सो ही लिव्ड इन द पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ द म्यूनिच वो एरिया है जहाँ उनकी स्टडी चल रही थी। देयर ही रिसीव्ड बैड फूड, फेस लैक ऑफ comfort, but he hated most the atmosphere of the slum violence, ठीक है। तो जिस स्लम एरिया में वो रहते थे, वहाँ की जो लैंड लेडी थी वो बहुत ज़्यादा शाउट करती रहती थी, जो उसके बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा परेशान करते रहते थे। तो वहाँ पे जो सिनेरियो था हमेशा, ठीक है, वो एक तरह की वायलेंस का बना रहता था, वहाँ पे हमेशा चीखें, नॉइजेस। तो जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, ठीक है, वो ये सब चीज़ें तो फेस कर ही रहे थे, जैसे कि वहाँ का जो फूड था वो अच्छा नहीं था, डिस्कम्फर्ट था, ठीक है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर था वो भी पीसफुल नहीं था, ठीक है। आइंस्टाइन डिड नॉट लाइक हिज होम, ठीक है, बिकॉज ही वॉज नॉट कंफर्टेबल देयर। इनफैक्ट आइंस्टाइन डिड नॉट लाइक द स्कूल टू एन एक्सटेंट दैट ही थॉट ऑफ नेवर पासिंग द एग्ज़ाम टू गेट द स्कूल डिप्लोमा, ठीक है। अभी उनको ऐसा लगता था कि वो डिप्लोमा तो कभी क्लियर कर नहीं सकते हैं, ठीक है। एज ही लाइक साइंसेज, ऐसा नहीं है कि वो उनको स्टडी से प्रॉब्लम थी, उनको कुछ जनरल सब्जेक्ट से प्रॉब्लम थी, ठीक है। ही लाइक साइंस, इज़ वेरी गुड एट, ही इज़ एक्सेप्शनली गुड एट मैथमेटिक्स ऑल्सो, बट ही विशेज़ ही कुड स्टडी जस्ट दिस सब्जेक्ट ओनली, जो कि पॉसिबल नहीं था, ओके। अभी तो हमारी देखो चाइल्ड जो हमने टुडेज़ एजुकेशन है, वहाँ पे आफ्टर 10th ही आपको अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ करने की फ्रीडम होती है। यू कैन चूज़ योर ऑन सब्जेक्ट्स, एंड उसके बाद जैसे जैसे और आप आगे बढ़ते जाते हैं तो आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आ जाते हैं जो कि आपका चॉइस का है, ठीक है। बट एट दैट टाइम इट्स नॉट पॉसिबल टू चूज़ ओनली वन सब्जेक्ट, सो मोर ओवर ही डज नॉट अंडरस्टैंड द रीज़न वाई ही नीड टू स्टडी द अदर सब्जेक्ट वेयर हिज इंटरेस्ट डज नॉट लाई, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि उन्हें सही नहीं लगती थी, ठीक है। सो अब बात करते हैं उनके फ्रेंड यूरी और कज़न की। सबसे पहले उनकी जो कज़न थी एल्सा, शी एडवाइज एल्बर्ट टू क्रैम द थिंग्स एंड पास द एग्जाम्स एज अदर फूलिश बॉय वुड डू, ठीक है। तो ये दो ही पर्सन उनकी लाइफ में थे, एक उनकी कज़न थी एल्सा और एक उनका फ्रेंड था यूरी, जो कि हमेशा उन्हें चेहरे पर मोटिवेट करने की कोशिश करते थे। और जो एल्सा थी वो उन्हें एडवाइस करती थी कि जैसे बाकी और बच्चे हैं वो आराम से चीज़ें रट लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, आप भी वैसे ही चीज़ों को लर्न कर लो और अच्छे मार्क्स, गुड मार्क्स लेके पास हो जाओ, ठीक है। क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यूइंग इज हायर स्टडी टू गेट पास मार्क्स इन द डिप्लोमा, ओके। यहाँ पे एक और क्वालिटी देखते हैं एल्बर्ट की। एल्बर्ट लव टू प्ले वायलिन एंड यूजुअली प्लेड इट रेगुलरली अंटिल हिज लैंडलेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो स्लम एरिया था वहाँ पे जो वायलेंस बहुत थी और नॉइजेस बहुत रहती थी, तो वो वायलिन बजाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए वायलिन बजाते थे और तब तक बजाते रहते जब तक उनकी लैंडलेडी जो थी वो आके उनको स्टॉप नहीं करवाती थी, ठीक है। एल्बर्ट फाइंड इट मीनिंगलेस टू स्टे इन म्यूनिच। अब फाइनली एक ऐसा टाइम आ गया था जहाँ पे उनको म्यूनिच में रहना मीनिंगलेस लग रहा था, ठीक है, क्योंकि उनकी जो स्टडी थी उस जो ट्रेडिशनल वे था उसके साथ वो कॉप अप नहीं कर पा रहे थे, बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। सो ही डिसाइडेड टू टेक सम बिग स्टेप, ओके।
क्या स्टेप था वो चलिए देखते हैं। आफ्टर डैट म्यूनिच में आने के बाद एल्बर्ट डिड नॉट टेक एन इंटरेस्ट देयर, ठीक है, एल्बर्ट को म्यूनिच में अभी कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, ठीक है, ही जस्ट वेस्टिंग हिज फादर्स मनी देयर, ठीक है जी, उनके जो फादर हैं उसको लग रहा था कि मैं अपने पैसे वेस्ट कर रहा हूँ। ही नाउ हैज़ एन एम्फनी ऑफ गिविंग अप अ स्कूल टुगेदर, ठीक है, सो ही आस्क्ड हिज फ्रेंड यूरी, ठीक है, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैंने स्कूल छोड़ना है, तो उन्होंने यूरी को बोला टू अरेंज फॉर अ डॉक्टर, ठीक है, ही प्लान्स टू आस्क द डॉक्टर टू राइट हिम ऑफ अ लुनेटिक नॉट फिट फॉर द स्कूल, ठीक है जी। तो अभी क्योंकि स्कूल से वो छोड़ने के लिए उन्होंने ये प्लान किया कि वो कोई डिज़ीज़ या कोई मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएंगे किसी डॉक्टर की हेल्प से, और डिज़ीज़ उन्होंने सोची है लुनेटिक, जो कि एक नर्वस ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, और उस नर्वस ब्रेकडाउन की वजह से जो स्टूडेंट है वो ही इज़ नॉट फिट फॉर गोइंग टू द स्कूल। सो इस मेडिकल सर्टिफिकेट के बेस पर उन्हें 6 मंथ की लीव मिल जानी थी, तो एक 6 मंथ की जो लॉन्ग पीरियड था रेस्ट का, ही वांट्स डैट, सो उसके लिए वही सारी प्लानिंग करते हैं यूरी के साथ, और फाइनली उन्हें एक डॉक्टर मिल भी जाता है, ठीक है। आइंस्टाइन इंक्वायर्ड यूरी, ठीक है, उन्होंने एक डॉक्टर के साथ किया, ठीक है, हु वुड सर्टिफाई हिम, चाहे तो उसे कि नर्वस ब्रेकडाउन के एक सर्टिफिकेट दे सके, सो डैट ही डिसकंटिन्यू हिज स्टडीज़, ठीक है जी। सो फाइनली द यूरी आइंस्टाइन गेट्स एन अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर वेल, फाइनली जो यूरी है क्योंकि वो एक मेडिकल स्टूडेंट था, ठीक है, तो उसे अपॉइंटमेंट मिल जाती है डॉक्टर वेल के साथ, एंड डॉक्टर वेल के साथ यूरी वॉन्ट्स एल्बर्ट नॉट टू चीट हिम, ठीक है, अब यूरी ये चाहता था कि वो डॉक्टर को सही से सच में बता दे सब कुछ, वहाँ पे प्रिटेंड ना करे जाके, ठीक है, लेकिन जो डॉक्टर था जब वो एल्बर्ट से बात करते तो वो समझ जाते हैं सारी बातें, और उन्हें फिर वो वापस उसे दे भी देते हैं, उसका मेडिकल सर्टिफिकेट बना देते हैं, ठीक है जी। एल्बर्ट वाज थिंकिंग द होल डे अबाउट व्हाट टू स्पीक टू डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाने से पहले वो सारा दिन तैयारी करते रहते हैं कि मैं इस तरह से बोलूँगा, मैं इस तरह से बोलूँगा वहाँ पे, क्योंकि उन्हें ये शो करना था कि एक्चुअली में उसे नर्वस ब्रेकडाउन है, ठीक है, जो कि नहीं था। सो इस तरह से पूरी प्लानिंग करते हैं। एल्बर्ट टेल्स द डॉक्टर व्हाट ही इज़ गोइंग टू डू एंड आफ्टर बीइंग सर्टिफाइड फॉर अ नर्वस ब्रेकडाउन, ठीक है जी। तो वो पूरा डॉक्टर को अपने से फिर सच्चाई बता देते हैं, क्योंकि डॉक्टर उन्हें पकड़ लेते हैं, लेकिन डॉक्टर जो हैं वो उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट दे देते हैं, ठीक है जी। डॉक्टर वेल हैंडेड द सर्टिफिकेट टू दी एल्बर्ट, फाइनली उन्हें सर्टिफिकेट मिल गया, एंड एल्बर्ट शोज यूरी हिज मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है जी। मेडिकल सर्टिफिकेट मिलने के बाद अभी उसका नेक्स्ट स्टेप ये था कि वो हेड टीचर के पास जाए, ठीक है, और वहाँ से अपना लीव ले ले मेडिकल सर्टिफिकेट दिखा के। लेकिन एक प्रॉब्लम थी डैट अगर उन्हें पास सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, डिप्लोमा का पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलता, दैन ही वॉज नॉट एबल टू कंटिन्यू स्टडी एट मिलान ऑल्सो, जहाँ वो अपने पेरेंट्स के पास जा रहे थे। तो मिस्टर कोच जो थे वो उनके मैथमेटिक्स टीचर थे, ठीक है, उन्होंने एक्चुअली उन्हें अपना एक रेफरेंस दिया, और उस रेफरेंस के बेस पर, ठीक है, जिस पर उन्होंने लिखा कि ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स एंड ही इज़ एबल टू कंटिन्यू स्टडीज़, तो उस रेफरेंस के बेस पर ही उन्हें मिलान में अपना कंटिन्यू करने का मौका मिलता है, और उसके बाद तो वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। सो मिस्टर कोच उन्हें हेल्प करते हैं नेक्स्ट एडमिशन दिलवाने में अपना रेफरेंस दे के, ठीक है जी। चलिए अपन देखते हैं नेक्स्ट। He tells Albert that due to his behavior they are asking him to leave school. अभी ये जो है हमारा ये लास्ट सीन है जिसमें जो हेड टीचर हैं, ठीक है, एल्बर्ट तो खुद ही उनसे मिलना चाहता था, उसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट रेडी था, ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि इससे पहले कि एल्बर्ट जाता है, एल्बर्ट को ही समन आ जाता है, मतलब बुलवाया जाता है, ठीक है, कि हेड टीचर उनसे मिलना चाहते हैं, और वो क्या कहते हैं उसे, डैट ड्यू टू हिज बिहेवियर ही इज़ आस्किंग टू लीव द स्कूल, ठीक है, दे फील दैट हिज बिहेवियर डिस्टर्ब द एनवायरनमेंट फॉर स्टडिंग, ठीक है, तो ये हेड टीचर से कहते हैं कि तुम्हारा जो बिहेवियर है वो सही नहीं है, तुम पूरा एनवायरनमेंट ख़राब कर रहे हो। सो इट वॉज सरप्राइजिंग फॉर एल्बर्ट दैट ही वॉज रेडी टू प्रेजेंट द मेडिकल रिपोर्ट, बट बिफोर डैट ओनली द स्कूल रस्टिकेटेड हिम, ठीक है।
तो इतनी जो उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया, इतनी तैयारी की, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी और स्कूल ने उन्हें रस्टिकेट कर दिया। दस ही लीव द स्कूल विदाउट इवन लुकिंग बैक एंड ओनली मीट्स यूरी, जो उनका फ्रेंड था, ठीक है, हु बिड्स हिम फेयरवेल एंड विशेज हिम लक फॉर हिज फ्यूचर। ठीक है, तो वहाँ म्यूनिच में बस यही एक पर्सन था और एल्सा थी जो कि उन्हें सी ऑफ करने के लिए आए थे। ठीक है जी, इस तरह से जो है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्कूलिंग का ये एक पार्ट है। ठीक है, सो कंक्लूजन देखते हैं कि हमें क्या सीखने को मिलता है। To sum up Albert Einstein school summary, we learn even the most genius mind did not have an easy life, and it is a struggle that makes us what we are. ठीक है, so this is the conclusion of our chapter, that the struggle is must in our life, and struggle gives us an identity. Okay, it defines us. So this chapter is a simple chapter, and I hope you get this chapter in a clear way.